जाने क्यों कह नहीं पाता हूँ तुमसे मैं, जाने क्यों दिल में ही हूँ मैं। ख्याल रखा आपने, खूब मेजबानी की। मेरा मौका है तो अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो आप मुझे बता सकती हैं। हमारी शहरबानों की कातिल, ये मनहूस लड़की अब बीबी जान की बहू बन गई है। आपको जिरगा बिठाना ही नहीं चाहिए था। ना बुजुर्ग बैठते, ना ये फैसला करते और ना ये निकाह होता। सारी गलती आपकी है। सारी गलती मेरी है। खुदा की शान देखो, कल तक जिसको कोई हवेली में मुंह नहीं लगाता था, आज सरदार की बीवी बन के बैठ गई है। क्या हो गया शीरी? गुस्सा चढ़ा हुआ है मुझे। जिसकी हम नौकरानियों से भी गई गुजरी हैसियत थी, बीजान की बहू बन के हवेली में इतराती फिरेगी, हम पे हुक्म चलाएगी। बुरी बात है शीरी, ऐसे नहीं। सरदार सरबुलंद खान, मैं तुमसे इंसाफ मांगने आई हूँ। सरदार सरबुलंद खान, मेरा शौहर सोहराब खान इस औरत बदकारी का मुजरिम है। भाभी बनकर नहीं, फरियादी बनकर आई हूँ। करवाओ इन दोनों को सजा सुना, जिरगा बिठाओ। अपने शौहर बात कान खोल कर सुन। मेरी एक ये बोल लड़की। आपको सिर्फ और सिर पर पहला पत्थर मारने का सिर्फ मेरा है। क्या कह रही है शानूर? ने तुम्हारे खिलाफ जिरगा बिठाया था ना, पर गलत इल्जाम लगाकर सोहराब ने सुन लिया। ठीक कह रही हैं। तो उसके जुर्म की सजा दो। तुम पर सच्चा इल्जाम लगाकर सजा देनी है तो जिरगा बिठाओ, सजा दो। भाभी नूरा बैठे। नहीं बैठ। तुम क्या कह रही हो? दे सिर्फ बदकारी की क्यों, हर जुर्म की दे। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरी कत्ल की भी उस जुर्म का बताऊंगी जिसमें सोहराब खान, हर कर मैं अकेली नहीं मरूंगी, इसीलिए मुझे मौत का डर भी नहीं है। जिंदगी तो सोहराब खान ने बर्बाद कर दी। दिलाला को जहर मैंने खुद दिया था, खान के साथ शामिल थी मैं। ये सच है कि शेर जाम तक पहुंचाऊंगी मैं।
اس کو اس کے انجام ان کے قتل کے لیے بارودی سرنگیں لیکن مجھے زہر لا کے دینے والا سورا بازو پہ جو گولی لگی ہے آپ کے بازو بچھانے والا بھی سوراب خان تھا. صرف یہی نہیں، حکم بھی سوراب خان نے دیا تھا. وہ گولی بظاہر تو مرد نے ماری ہے، مگر گولی چلوانے کا حکم بانو بیوی کو سب پتہ چل گیا تھا. انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے بھی کبھی قتل کر دیا. انہیں بانو بیوی سن لی تھی ساری باتیں. سسرال جب بانو بیوی نے سب سن لیا تو السلام علیکم ناظرین. ڈرامہ سیریل زنجیریں کے نیو ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. ناظرین، یہ ڈرامہ دنیا بھر چھایا ہوا ہے اور اس کی کہانی آگے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. ادھر سوراب خان کی بیوی بانو کو لے آتی اور یہ کہتی کہ تم سربلند خان صاحب کے پیچھے چلو. سربلند خان صاحب کو وہ چیخ کر کہتی ہے کہ یہ دیکھو میں اسے لے آئی ہوں، اب اس کا کیا کرنا ہے. یہ بھی بانو اور سربلند خان صاحب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں. یہ بانو کے بال کھینچ کر لے آتی اور اس کے کہتی سربلند خان اب انصاف کرو، اب انصاف تمہارا کہاں گیا. بی بانو بھی کھڑی ہو جاتی اور یہ کہتی ہے بی جان اب کیا مسئلہ ہے. سربلند خان صاحب کھڑا ہو کر بہت حیران کن دیکھنے لگ جاتا. یہ کہتی کہ یہ میری مجرم ہے، اب اس کو تم کیا سزا دو گی. یہ اسے نیچے سربلند خان کے پاؤں پہ پھینک دیتی ہے اور یہ کہتی ہے سربلند خان اب تمہارا انصاف کہاں گیا، انصاف کرو. سربلند خان صاحب کہتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو اور مجھے کچھ معلوم ہی نہیں. یہ کہتی ہے کہ اس کا تعلق میرے شوہر کے ساتھ ہے. سربلند خان صاحب یہ سن کر چونک جاتا ہے اور یہ کہتا کیا بات ہے. ادھر یہ کہتی یہ بچے کی ماں بھی بننے والی ہے، اس کے میرے بھی جانو. سربلند خان کہتا کیا تم یہ سچ کہہ رہی ہو. یہ کہتی ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ میرے میاں کی بچے کی ماں بننے والی ہے. اب تمہارا انصاف کہاں ہے، اس سے پوچھو یہ کیا رنگ رلیاں مناتی رہی ہے. یہ نیچے پاؤں کی گری ہوتی اور یہ بھی جان کہتی اب تم اٹھ جاؤ، ہم تم سے پوچھیں گے. یہ کہتی اب انصاف مجھے چاہیے اور اس نے میرے شوہر کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے. بی جان کہتی ہے اچھا تو اب ہم پوچھیں گے. سربلند خان صاحب سے کہتا ہے کہ تم سچ سچ بتا دو، اپنی زندگی چاہتی ہو تو. یہ کہتی کہ میں تمہیں کچھ نہیں بتانا چاہتی، آپ اسی سے ہی پوچھیں، سب کچھ اس کو معلوم، اس نے جو کچھ بھی کیا اس کو معلوم ہے. یہ کہتی میں تمہیں سچ سچ ہی بتاؤں گی، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے. بی جان اور سربلند خان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم اب سچ سچ بات بتا دو، تمہارے لیے بہتری یہی ہے. یہ کہتی ہے کہ میں سچ کہوں گی، مجھے قتل ہونے کا کوئی افسوس نہیں ہے. یہ کہتی ہے کہ اب اس نے سب کچھ کیا، رنگ رلیاں مناتی رہی. یہ کہتی ہاں میرا اس کے شوہر کے ساتھ تعلق تھا، میں بچے کی ماں بننے والی ہوں. بی جان اور سربلند خان صاحب پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ کہتی کہ اب انصاف کون کرے گا، مجھے انصاف چاہیے، میں تمہارے پاس لے کر آئی ہوں اور میں کہیں بھی نہیں جانے والی، تم سردار ہو. یہ بی جان اور یہ چاروں کھڑے ہوتے ہیں. یہ اس کے پاؤں میں گری ہوتی ہے اور بی جان کہتی ہے ہم لوگ تمہیں انصاف لے کر دیں گے. یہ کہتی ہے کہ اب مجھے انصاف چاہیے اور میں لے کر ہی جاؤں گی. تو السلام علیکم ناظرین. ڈرامہ سیریل زنجیریں کے نیو ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. ناظرین، یہ ڈرامہ دنیا بھر چھایا ہوا ہے اور اس کی کہانی آگے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. ادھر سوراب خان کی بیوی بانو کو لے آتی اور یہ کہتی کہ تم سربلند خان صاحب کے پیچھے چلو. سربلند خان صاحب کو وہ چیخ کر کہتی ہے کہ یہ دیکھو میں اسے لے آئی ہوں، اب اس کا کیا کرنا ہے. یہ بھی بانو اور سربلند خان صاحب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں. یہ بانو کے بال کھینچ کر لے آتی ہے اور اس کے
कहते सरबुलंद खान अब इंसाफ करो, अब इंसाफ तुम्हारा कहाँ गया। बी बानो भी खड़ी हो जाती और ये कहती है बी जान अब क्या मसला है। सरबुलंद खान साहब खड़ा होकर बहुत हैरान कुन देखने लग जाता। ये कहती कि ये मेरी मुजरम है, अब इसको तुम क्या सजा दोगे। ये इसे नीचे सरबुलंद खान के पाँव पे फेंक देती है और ये कहती है सरबुलंद खान अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ गया, इंसाफ करो। सरबुलंद खान साहब कहता है तुम क्या कह रही हो और मुझे कुछ मालूम ही नहीं। ये कहती है कि इसका तल्लक मेरे शौहर के साथ है। सरबुलंद खान साहब ये सुनकर चौंक जाता है और ये कहता क्या बात है। इधर ये कहती ये बच्चे की माँ भी बनने वाली है, इसके मेरे बी जानो। सरबुलंद खान कहता क्या तुम ये सच कह रही हो। ये कहती हाँ मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे मियाँ की बच्चे की माँ बनने वाली है। अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ है, इससे पूछो ये क्या रंग रलियाँ मनाती रही है। ये नीचे पाँव के गिरी होती और ये बी जान कहती अब तुम उठ जाओ, हम तुमसे पूछेंगे। ये कहती है अब इंसाफ मुझे चाहिए और इसने मेरे शौहर के साथ नाजायज तल्लक रखे। बी जान कहती है अच्छा तो अब हम पूछेंगे। सरबुलंद खान साहब से कहता है कि तुम सच सच बता दो, अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो। ये कहती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती, आप इसी से ही पूछें, सब कुछ इसको मालूम, इसने जो कुछ भी किया इसको मालूम है। ये कहती मैं तुम्हें सच सच ही बताऊंगी, मुझे मौत का डर नहीं है। बी जान और सरबुलंद खान साहब खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम अब सच सच बात बता दो, तुम्हारे लिए बेहतरी यही है। ये कहती है कि मैं सच कहूँगी, मुझे कत्ल होने का कोई अफसोस नहीं है। ये कहती है कि अब इसने सब कुछ किया, रंग रलियाँ मनाती रही। ये कहती है हाँ मेरा इसके शौहर के साथ तल्लक था, मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बी जान और सरबुलंद खान साहब परेशान हो जाते हैं और ये कहती कि अब इंसाफ कौन करेगा, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ और मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम सरदार हो। ये बी जान और ये चारों खड़े होते हैं, ये इसके पाँव में गिरी होती है और बी जान कहती है हम लोग तुम्हें इंसाफ लेकर देंगे। ये कहती है कि अब मुझे इंसाफ चाहिए और मैं लेकर ही जाऊंगी तुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें के न्यू ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं नाज़रीन। ये ड्रामा दुनिया भर छाया हुआ है और इसकी कहानी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर सराब खान की बीवी बानो को ले आती है और ये कहती है कि तुम सरबुलंद खान साहब के पीछे चलो। सरबुलंद खान साहब को वो चीख कर कहती है कि ये देखो मैं इसे ले आई हूँ, अब इसका क्या करना है। ये बी बानो और सरबुलंद खान साहब उठकर खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अब क्या हो गया, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। ये बानो के बाल खींचकर ले आती है और इसके कहते सरबुलंद खान अब इंसाफ करो, अब इंसाफ तुम्हारा कहाँ गया। बी बानो भी खड़ी हो जाती और ये कहती है बी जान अब क्या मसला है। सरबुलंद खान साहब खड़ा होकर बहुत हैरान कुन देखने लग जाता। ये कहती कि ये मेरी मुजरम है, अब इसको तुम क्या सजा दोगे। ये इसे नीचे सरबुलंद खान के पाँव पे फेंक देती है और ये कहती है सरबुलंद खान अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ गया, इंसाफ करो। सरबुलंद खान साहब कहता है तुम क्या कह रही हो और मुझे कुछ मालूम ही नहीं। ये कहती है कि इसका तल्लक मेरे शौहर के साथ है। सरबुलंद खान साहब ये सुनकर चौंक जाता है और ये कहता क्या बात है। इधर ये कहती ये बच्चे की माँ भी बनने वाली है, इसके मेरे बी जानो। सरबुलंद खान कहता क्या तुम ये सच कह रही हो। ये कहती हाँ मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे मियाँ की बच्चे की माँ बनने वाली है। अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ है, इससे पूछो ये क्या रंग रलियाँ मनाती रही है। ये नीचे पाँव के गिरी होती और ये बी जान कहती अब तुम उठ जाओ, हम तुमसे पूछेंगे। ये कहती अब इंसाफ मुझे चाहिए और इसने मेरे शौहर के साथ नाजायज तल्लक रखे। बी जान कहती है अच्छा तो अब हम पूछेंगे। सरबुलंद खान साहब से कहता है कि तुम सच सच बता दो, अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो। ये कहती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती, आप इसी से ही पूछें, सब कुछ इसको मालूम, इसने जो कुछ भी किया इसको मालूम है।
ये कहती मैं तुम्हें सच सच ही बताऊंगी, मुझे मौत का डर नहीं है। बी जान और सरबुलंद खान साहब खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम अब सच सच बात बता दो, तुम्हारे लिए बेहतरी यही है। ये कहती है कि मैं सच कहूंगी, मुझे कत्ल होने का कोई अफसोस नहीं है। ये कहती है कि अब इसने सब कुछ किया, रंग रलियां मनाती रही। ये कहती है हाँ, मेरा इस किशोर के साथ तल्लक था, मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बी जान और सरबुलंद खान साहब परेशान हो जाते हैं और ये कहती कि अब इंसाफ कौन करेगा, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ और मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम सरदार हो। ये बी जान और ये चारों खड़े होते हैं। ये इसके पाँव में गिरी होती है और बी जान कहती है हम लोग तुम्हें इंसाफ लेकर देंगे। ये कहती है कि अब मुझे इंसाफ चाहिए और मैं लेकर ही जाऊंगी तुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें के न्यू ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं नाज़रीन। ये ड्रामा दुनिया भर छाया हुआ है और इसकी कहानी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर सोराब खान की बीवी बानो को ले आती और ये कहती कि तुम सरबुलंद खान साहब के पीछे चलो। सरबुलंद खान साहब को वो चीख कर कहती है कि ये देखो मैं इसे ले आई हूँ, अब इसका क्या करना है। ये बी बानो और सरबुलंद खान साहब उठकर खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अब क्या हो गया, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। ये बानो के बाल खींचकर ले आती है और इसके कहते सरबुलंद खान अब इंसाफ करो, अब इंसाफ तुम्हारा कहाँ गया। बी बानो भी खड़ी हो जाती और ये कहती है बी जान अब क्या मसला है। सरबुलंद खान साहब खड़ा होकर बहुत हैरान कुन देखने लग जाता। ये कहती कि ये मेरी मुजरम है, अब इसको तुम क्या सजा दोगी। ये इसे नीचे सरबुलंद खान के पाँव पे फेंक देती है और ये कहती है सरबुलंद खान अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ गया, इंसाफ करो। सरबुलंद खान साहब कहता है तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ मालूम ही नहीं। ये कहती है कि इसका तल्लक मेरे शौहर के साथ है। सरबुलंद खान साहब ये सुनकर चौंक जाता है और ये कहता क्या बात है। इधर ये कहती ये बच्चे की माँ भी बनने वाली है, इसके मेरे बी जान। सरबुलंद खान कहता क्या तुम ये सच कह रही हो। ये कहती हाँ मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे मियाँ की बच्चे की माँ बनने वाली है, अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ है, इससे पूछो ये क्या रंग रलियां मनाती रही है। ये नीचे पाँव के गिरी होती है और ये बी जान कहती अब तुम उठ जाओ, हम तुमसे पूछेंगे। ये कहती अब इंसाफ मुझे चाहिए और इसने मेरे शौहर के साथ नाजायज तल्लक रखे। बी जान कहती है अच्छा तो अब हम पूछेंगे। सरबुलंद खान साहब से कहता है कि तुम सच सच बता दो, अपनी जिंदगी चाहती हो तो। ये कहती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती, आप इसी से ही पूछें, सब कुछ इसको मालूम, इसने जो कुछ भी किया इसको मालूम है। ये कहती मैं तुम्हें सच सच ही बताऊंगी, मुझे मौत का डर नहीं है। बी जान और सरबुलंद खान साहब खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम अब सच सच बात बता दो, तुम्हारे लिए बेहतरी यही है। ये कहती है कि मैं सच कहूंगी, मुझे कत्ल होने का कोई अफसोस नहीं है। ये कहती है कि अब इसने सब कुछ किया, रंग रलियां मनाती रही। ये कहती हाँ, मेरा इस किशोर के साथ तल्लक था, मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बी जान और सरबुलंद खान साहब परेशान हो जाते हैं और ये कहती कि अब इंसाफ कौन करेगा, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ और मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम सरदार हो। ये बी जान और ये चारों खड़े होते हैं। ये इसके पाँव में गिरी होती है और बी जान कहती है हम लोग तुम्हें इंसाफ लेकर देंगे। ये कहती है कि अब मुझे इंसाफ चाहिए और मैं लेकर ही जाऊंगी तुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें के न्यू ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं नाज़रीन। ये ड्रामा दुनिया भर छाया हुआ है और इसकी कहानी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर सोराब खान की बीवी बानो को ले आती और ये कहती कि तुम सरबुलंद खान साहब के पीछे चलो। सरबुलंद खान साहब को वो चीख कर कहती है कि ये देखो मैं इसे ले आई हूँ, अब इसका क्या करना है। ये बी बानो और सरबुलंद खान साहब उठकर खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अब क्या हो गया, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। ये बानो के बाल खींचकर ले आती है और इसके
कहते सरबुलंद खान अब इंसाफ करो, अब इंसाफ तुम्हारा कहाँ गया। बी बानो भी खड़ी हो जाती और ये कहती है बी जान अब क्या मसला है। सरबुलंद खान साहब खड़ा होकर बहुत हैरान कुन देखने लग जाता। ये कहती कि ये मेरी मुजरम है, अब इसको तुम क्या सजा दोगी। ये इसे नीचे सरबुलंद खान के पाँव पे फेंक देती है और ये कहती है सरबुलंद खान अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ गया, इंसाफ करो। सरबुलंद खान साहब कहता है तुम क्या कह रही हो और मुझे कुछ मालूम ही नहीं। ये कहती है कि इसका तल्लक मेरे शौहर के साथ है। सरबुलंद खान साहब ये सुनकर चौंक जाता है और ये कहता क्या बात है। इधर ये कहती ये बच्चे की माँ भी बनने वाली है, इसके मेरे बी जानो। सरबुलंद खान कहता क्या तुम ये सच कह रही हो। ये कहती हाँ मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे मियाँ की बच्चे की माँ बनने वाली है। अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ है, इससे पूछो ये क्या रंग रलियाँ मनाती रही है। ये नीचे पाँव की गिरी होती और ये बी जान कहती अब तुम उठ जाओ, हम तुमसे पूछेंगे। ये कहती अब इंसाफ मुझे चाहिए और इसने मेरे शौहर के साथ नजायज तल्लक रखे। बी जान कहती है अच्छा तो अब हम पूछेंगे। सरबुलंद खान साहब से कहता है कि तुम सच सच बता दो, अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो। ये कहती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती, आप इसी से ही पूछें, सब कुछ इसको मालूम, इसने जो कुछ भी किया इसको मालूम है। ये कहती मैं तुम्हें सच सच ही बताऊंगी, मुझे मौत का डर नहीं है। बी जान और सरबुलंद खान साहब खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम अब सच सच बात बता दो, तुम्हारे लिए बेहतरी यही है। ये कहती है कि मैं सच कहूँगी, मुझे कत्ल होने का कोई अफसोस नहीं है। ये कहती है कि अब इसने सब कुछ किया, रंग रलियाँ मनाती रही। ये कहती है हाँ मेरा इसके शौहर के साथ तल्लक था, मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बी जान और सरबुलंद खान साहब परेशान हो जाते हैं और ये कहती कि अब इंसाफ कौन करेगा, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ और मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम सरदार हो। ये बी जान और ये चारों खड़े होते हैं, ये इसके पाँव में गिरी होती है और बी जान कहती है हम लोग तुम्हें इंसाफ लेकर देंगे। ये कहती है कि अब मुझे इंसाफ चाहिए और मैं लेकर ही जाऊंगी। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें के न्यू ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन ये ड्रामा दुनिया भर छाया हुआ है और इसकी कहानी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर सुराब खान की बीवी बानो को ले आती है और ये कहती है कि तुम सरबुलंद खान साहब के पीछे चलो। सरबुलंद खान साहब को वो चीख कर कहती है कि ये देखो मैं इसे ले आई हूँ, अब इसका क्या करना है। ये बी बानो और सरबुलंद खान साहब उठकर खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अब क्या हो गया, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। ये बानो के बाल खींचकर ले आती है और इसके कहती सरबुलंद खान अब इंसाफ करो, अब इंसाफ तुम्हारा कहाँ गया। बी बानो भी खड़ी हो जाती और ये कहती है बी जान अब क्या मसला है। सरबुलंद खान साहब खड़ा होकर बहुत हैरान कुन देखने लग जाता। ये कहती है कि ये मेरी मुजरम है, अब इसको तुम क्या सजा दोगी। ये इसे नीचे सरबुलंद खान के पाँव पे फेंक देती है और ये कहती है सरबुलंद खान अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ गया, इंसाफ करो। सरबुलंद खान साहब कहता है तुम क्या कह रही हो और मुझे कुछ मालूम ही नहीं। ये कहती है कि इसका तल्लक मेरे शौहर के साथ है। सरबुलंद खान साहब ये सुनकर चौंक जाता है और ये कहता क्या बात है। इधर ये कहती ये बच्चे की माँ भी बनने वाली है, इसके मेरे बी जानो। सरबुलंद खान कहता क्या तुम ये सच कह रही हो। ये कहती हाँ मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे मियाँ की बच्चे की माँ बनने वाली है। अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ है, इससे पूछो ये क्या रंग रलियाँ मनाती रही है। ये नीचे पाँव की गिरी होती है और ये बी जान कहती अब तुम उठ जाओ, हम तुमसे पूछेंगे। ये कहती अब इंसाफ मुझे चाहिए और इसने मेरे शौहर के साथ नजायज तल्लक रखे। बी जान कहती है अच्छा तो अब हम पूछेंगे। सरबुलंद खान साहब से कहता है कि तुम सच सच बता दो, अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो। ये कहती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती, आप इसी से ही पूछें, सब कुछ इसको मालूम, इसने जो कुछ भी किया इसको मालूम है।
ये कहती मैं तुम्हें सच सच ही बताऊंगी, मुझे मौत का डर नहीं है। बीजान और सर बुलंद खान साहब खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम अब सच सच बात बता दो, तुम्हारे लिए बेहतरी यही है। ये कहती है कि मैं सच कहूंगी, मुझे कत्ल होने का कोई अफसोस नहीं है। ये कहती है कि अब इसने सब कुछ किया, रंग रलियां मनाती रही। ये कहती है हाँ, मेरा इसके शोर के साथ तल्लक था, मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बीजान और सरबंद खान साहब परेशान हो जाते हैं और ये कहती कि अब इंसाफ कौन करेगा, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ और मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम सरदार हो। ये बीजान और ये चारों खड़े होते हैं। ये इसके पाँव में गिरी होती है और बीजान कहती है हम लोग तुम्हें इंसाफ लेकर देंगे। ये कहती है कि अब मुझे इंसाफ चाहिए और मैं लेकर ही जाऊंगी तुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें के न्यू ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं नाज़रीन। ये ड्रामा दुनिया भर छाया हुआ है और इसकी कहानी आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर सुराब खान की बीवी बानो को ले आती है और ये कहती कि तुम सरबुलंद खान साहब के पीछे चलो। सरबुलंद खान साहब को वो चीख कर कहती है कि ये देखो मैं इसे ले आई हूँ, अब इसका क्या करना है। ये बी बानो और सरबुलंद खान साहब उठकर खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अब क्या हो गया, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। ये बानो के बाल खींचकर ले आती है और इसके कहती सरबुलंद खान अब इंसाफ करो, अब इंसाफ तुम्हारा कहाँ गया। बी बानो भी खड़ी हो जाती और ये कहती है बीजान अब क्या मसला है। सरबुलंद खान साहब खड़ा होकर बहुत हैरान कुन देखने लग जाता। ये कहती कि ये मेरी मुजरम है, अब इसको तुम क्या सजा दोगी। ये इसे नीचे सरबुलंद खान के पाँव पे फेंक देती है और ये कहती है सरबुलंद खान अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ गया, इंसाफ करो। सरबुलंद खान साहब कहता है तुम क्या कह रही हो और मुझे कुछ मालूम ही नहीं। ये कहती है कि इसका तल्लक मेरे शौहर के साथ है। सरबुलंद खान साहब ये सुनकर चौंक जाता है और ये कहता क्या बात है। इधर ये कहती ये बच्चे की माँ भी बनने वाली है, इसके मेरे बीजान। सरबुलंद खान कहता क्या तुम ये सच कह रही हो। ये कहती हाँ मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे मियाँ की बच्चे की माँ बनने वाली है, अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ है, इससे पूछो ये क्या रंग रलियां मनाती रही है। ये नीचे पाँव के गिरी होती है और ये बीजान कहती अब तुम उठ जाओ, हम तुमसे पूछेंगे। ये कहती अब इंसाफ मुझे चाहिए और इसने मेरे शौहर के साथ नजायज तल्लक रखे। बीजान कहती है अच्छा तो अब हम पूछेंगे। सरबुलंद खान साहब से कहता है कि तुम सच सच बता दो, अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो। ये कहती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती, आप इसी से ही पूछें, सब कुछ इसको मालूम, इसने जो कुछ भी किया इसको मालूम है। ये कहती मैं तुम्हें सच सच ही बताऊंगी, मुझे मौत का डर नहीं है। बीजान और सरबुलंद खान साहब खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम अब सच सच बात बता दो, तुम्हारे लिए बेहतरी यही है। ये कहती है कि मैं सच कहूंगी, मुझे कत्ल होने का कोई अफसोस नहीं है। ये कहती है कि अब इसने सब कुछ किया, रंग रलियां मनाती रही। ये कहती हाँ, मेरा इसके शोर के साथ तल्लक था, मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बीजान और सरबुलंद खान साहब परेशान हो जाते हैं और ये कहती कि अब इंसाफ कौन करेगा, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ और मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम सरदार हो। ये बीजान और ये चारों खड़े होते हैं। ये इसके पाँव में गिरी होती है और बीजान कहती है हम लोग तुम्हें इंसाफ लेकर देंगे। ये कहती है कि अब मुझे इंसाफ चाहिए और मैं लेकर ही जाऊंगी तुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें के न्यू ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं नाज़रीन। ये ड्रामा दुनिया भर छाया हुआ है और इसकी कहानी आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर सुराब खान की बीवी बानो को ले आती है और ये कहती कि तुम सरबुलंद खान साहब के पीछे चलो। सरबुलंद खान साहब को वो चीख कर कहती है कि ये देखो मैं इसे ले आई हूँ, अब इसका क्या करना है। ये बी बानो और सरबुलंद खान साहब उठकर खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अब क्या हो गया, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। ये बानो के बाल खींचकर ले आती है और इसके
कहती सरबुलंद खान अब इंसाफ करो, अब इंसाफ तुम्हारा कहाँ गया। बी बानो भी खड़ी हो जाती और ये कहती है बी जान अब क्या मसला है। सरबुलंद खान साहब खड़ा होकर बहुत हैरान कुन देखने लग जाता। ये कहती कि ये मेरी मुजरम है, अब इसको तुम क्या सजा दोगी। ये इसे नीचे सरबुलंद खान के पाँव पे फेंक देती है और ये कहती है सरबुलंद खान अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ गया, इंसाफ करो। सरबुलंद खान साहब कहता है तुम क्या कह रही हो और मुझे कुछ मालूम ही नहीं। ये कहती है कि इसका तल्लक मेरे शौहर के साथ है। सरबुलंद खान साहब ये सुनकर चौंक जाता है और ये कहता क्या बात है। इधर ये कहती ये बच्चे की माँ भी बनने वाली है, इसके मेरे बी जानो। सरबुलंद खान कहता क्या तुम ये सच कह रही हो। ये कहती हाँ मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे मियाँ की बच्चे की माँ बनने वाली है। अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ है, इससे पूछो ये क्या रंग रलियाँ मनाती रही है। ये नीचे पाँव के गिरी होती है और ये बी जान कहती अब तुम उठ जाओ, हम तुमसे पूछेंगे। ये कहती है अब इंसाफ मुझे चाहिए और इसने मेरे शौहर के साथ नाजायज तल्लक रखे। बी जान कहती है अच्छा तो अब हम पूछेंगे। सरबुलंद खान साहब से कहता है कि तुम सच सच बता दो, अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो। ये कहती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती, आप इसी से ही पूछें, सब कुछ इसको मालूम, इसने जो कुछ भी किया इसको मालूम है। ये कहती मैं तुम्हें सच सच ही बताऊंगी, मुझे मौत का डर नहीं है। बी जान और सरबुलंद खान साहब खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम अब सच सच बात बता दो, तुम्हारे लिए बेहतरी यही है। ये कहती है कि मैं सच कहूँगी, मुझे कत्ल होने का कोई अफसोस नहीं है। ये कहती है कि अब इसने सब कुछ किया, रंग रलियाँ मनाती रही। ये कहती हाँ मेरा इसके शौहर के साथ तल्लक था, मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बी जान और सरबुलंद खान साहब परेशान हो जाते हैं और ये कहती कि अब इंसाफ कौन करेगा, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ और मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम सरदार हो। ये बी जान और ये चारों खड़े होते हैं, ये इसके पाँव में गिरी होती है और बी जान कहती हम लोग तुम्हें इंसाफ लेकर देंगे। ये कहती है कि अब मुझे इंसाफ चाहिए और मैं लेकर ही जाऊंगी तुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरत ज़ंजीरे के न्यू ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं नाज़रीन। ये ड्रामा दुनिया भर छाया हुआ है और इसकी कहानी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर सोराब खान की बीवी बानो को ले आती और ये कहती कि तुम सरबुलंद खान साहब के पीछे चलो। सरबुलंद खान साहब को वो चीख कर कहती है कि ये देखो मैं इसे ले आई हूँ, अब इसका क्या करना है। ये बी बानो और सरबुलंद खान साहब उठकर खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अब क्या हो गया, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। ये बानो के बाल खींचकर ले आती है और इसके कहती सरबुलंद खान अब इंसाफ करो, अब इंसाफ तुम्हारा कहाँ गया। बी बानो भी खड़ी हो जाती और ये कहती है बी जान अब क्या मसला है। सरबुलंद खान साहब खड़ा होकर बहुत हैरान कुन देखने लग जाता। ये कहती कि ये मेरी मुजरम है, अब इसको तुम क्या सजा दोगी। ये इसे नीचे सरबुलंद खान के पाँव पे फेंक देती है और ये कहती है सरबुलंद खान अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ गया, इंसाफ करो। सरबुलंद खान साहब कहता है तुम क्या कह रही हो और मुझे कुछ मालूम ही नहीं। ये कहती है कि इसका तल्लक मेरे शौहर के साथ है। सरबुलंद खान साहब ये सुनकर चौंक जाता है और ये कहता क्या बात है। इधर ये कहती ये बच्चे की माँ भी बनने वाली है, इसके मेरे बी जानो। सरबुलंद खान कहता क्या तुम ये सच कह रही हो। ये कहती हाँ मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे मियाँ की बच्चे की माँ बनने वाली है। अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ है, इससे पूछो ये क्या रंग रलियाँ मनाती रही है। ये नीचे पाँव के गिरी होती है और ये बी जान कहती अब तुम उठ जाओ, हम तुमसे पूछेंगे। ये कहती अब इंसाफ मुझे चाहिए और इसने मेरे शौहर के साथ नाजायज तल्लक रखे। बी जान कहती है अच्छा तो अब हम पूछेंगे। सरबुलंद खान साहब से कहता है कि तुम सच सच बता दो, अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो। ये कहती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती, आप इसी से ही पूछें, सब कुछ इसको मालूम, इसने जो कुछ भी किया इसको मालूम है।
ये कहती मैं तुम्हें सच सच ही बताऊंगी, मुझे मौत का डर नहीं है। बी जान और सरबुलंद खान साहब खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम अब सच सच बात बता दो, तुम्हारे लिए बेहतरी यही है। ये कहती है कि मैं सच कहूंगी, मुझे कत्ल होने का कोई अफसोस नहीं है। ये कहती है कि अब इसने सब कुछ किया, रंग रलियां मनाती रही। ये कहती है हाँ, मेरा इसके शोर के साथ तल्लक था, मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बी जान और सरबुलंद खान साहब परेशान हो जाते हैं और ये कहती कि अब इंसाफ कौन करेगा, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ और मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम सरदार हो। ये बी जान और ये चारों खड़े होते हैं। ये इसके पाँव में गिरी होती है और बी जान कहती है हम लोग तुम्हें इंसाफ लेकर देंगे। ये कहती है कि अब मुझे इंसाफ चाहिए और मैं लेकर ही जाऊंगी तुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें के न्यू ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं नाज़रीन। ये ड्रामा दुनिया भर छाया हुआ है और इसकी कहानी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर सोराब खान की बीवी बानो को ले आती है और ये कहती कि तुम सरबुलंद खान साहब के पीछे चलो। सरबुलंद खान साहब को वो चीख कर कहती है कि ये देखो मैं इसे ले आई हूँ, अब इसका क्या करना है। ये बी बानो और सरबुलंद खान साहब उठकर खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अब क्या हो गया, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। ये बानो के बाल खींचकर ले आती है और इसके कहती सरबुलंद खान अब इंसाफ करो, अब इंसाफ तुम्हारा कहाँ गया। बी बानो भी खड़ी हो जाती और ये कहती है बी जान अब क्या मसला है। सरबुलंद खान साहब खड़ा होकर बहुत हैरान कुन देखने लग जाता। ये कहती कि ये मेरी मुजरम है, अब इसको तुम क्या सजा दोगी। ये इसे नीचे सरबुलंद खान के पाँव पे फेंक देती है और ये कहती है सरबुलंद खान अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ गया, इंसाफ करो। सरबुलंद खान साहब कहता है तुम क्या कह रही हो और मुझे कुछ मालूम ही नहीं। ये कहती है कि इसका तल्लक मेरे शौहर के साथ है। सरबुलंद खान साहब ये सुनकर चौंक जाता है और ये कहता क्या बात है। इधर ये कहती ये बच्चे की माँ भी बनने वाली है, इसके मेरे बी जान। सरबुलंद खान कहता क्या तुम ये सच कह रही हो। ये कहती हाँ मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे मियाँ की बच्चे की माँ बनने वाली है, अब तुम्हारा इंसाफ कहाँ है, इससे पूछो ये क्या रंग रलियां मनाती रही है। ये नीचे पाँव के गिरी होती है और ये बी जान कहती अब तुम उठ जाओ, हम तुमसे पूछेंगे। ये कहती है अब इंसाफ मुझे चाहिए और इसने मेरे शौहर के साथ नजायज तल्लक रखे। बी जान कहती है अच्छा तो अब हम पूछेंगे। सरबुलंद खान साहब से कहता है कि तुम सच सच बता दो, अपनी जिंदगी चाहती हो तो। ये कहती है कि मैं कुछ नहीं बताना चाहती, आप इसी से ही पूछें, सब कुछ इसको मालूम, इसने जो कुछ भी किया इसको मालूम है। ये कहती मैं तुम्हें सच सच ही बताऊंगी, मुझे मौत का डर नहीं है। बी जान और सरबुलंद खान साहब खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम अब सच सच बात बता दो, तुम्हारे लिए बेहतरी यही है। ये कहती है कि मैं सच कहूंगी, मुझे कत्ल होने का कोई अफसोस नहीं है। ये कहती है कि अब इसने सब कुछ किया, रंग रलियां मनाती रही। ये कहती हाँ, मेरा इसके शौहर के साथ तल्लक था, मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बी जान और सरबुलंद खान साहब परेशान हो जाते हैं और ये कहती कि अब इंसाफ कौन करेगा, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ और मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम सरदार हो। ये बी जान और ये चारों खड़े होते हैं। ये इसके पाँव में गिरी होती है और बी जान कहती है हम लोग तुम्हें इंसाफ लेकर देंगे। ये कहती है कि अब मुझे इंसाफ चाहिए और मैं लेकर ही जाऊंगी तुम, इसने जो कुछ भी किया इसको मालूम है। ये कहती मैं तुम्हें सच सच ही बताऊंगी, मुझे मौत का डर नहीं है। बी जान और सरबुलंद खान साहब खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम अब सच सच बात बता दो, तुम्हारे लिए बेहतरी यही है। ये कहती है कि मैं सच कहूंगी, मुझे कत्ल होने का कोई अफसोस नहीं है। ये कहती है कि अब इसने सब कुछ किया, रंग रलियां मनाती रही। ये कहती है हाँ, मेरा इसके शौहर के साथ तल्लक था, मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बी जान और सरबुलंद खान साहब परेशान हो जाते हैं और ये कहती कि अब इंसाफ कौन करेगा, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ और मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम सरदार हो। ये बी जान और ये चारों खड़े होते हैं। ये इसके पाँव में
गिरी होती है और बी जान कहती है हम लोग तुम्हें इंसाफ लेकर देंगे। ये कहती है कि अब मुझे इंसाफ चाहिए और मैं लेकर ही जाऊंगी।